Morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest edtech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your mentor and teacher in this journey. And I have been teaching you UGC Net Paper 1. And in today's class, we'll start with Unit 5. And I have already covered 4 units prior to this one. So if you're new to the channel, definitely make sure that you check out all those prior videos because your examination is approaching and it's near, so you need to prepare for your examination well. So we'll talk about unit 5 in this video, mathematical reasoning and aptitude, right? So we'll talk about this. Firstly, what are the things that you have to know, and how do you have to prepare for this, right? So firstly, मैं हमेशा इस चीज को, इस यूनिट को पर्टिकुलरली 2 स्टूडेंट्स के लिए डिवाइड करता हूँ, राइट? Those who are good with maths and those who haven't studied at all. ओके, तो मैंने जैसे बोला, मैं इसको यूनिट को 2 पार्ट में इसमें 2 स्टूडेंट्स के लिए, एज एन इफ यू आर वन ऑफ दोज हु लैंड इनटू कैटेगरी 1, दिस इज द कैटेगरी 2, राइट? सो कैटेगरीज वाइज मैं इसको हमेशा डिफाइन करता हूँ 2 तरीके से. फर्स्टली, हम कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर बोले, राइट, कैटेगरी 1, तो उनके लिए दिस यूनिट इज डेफिनेटली इजियर इफ वी बिकॉज द level of questions, if you are coming from if you are one of those guys who are preparing for any other competitive exams as well, such as banking exams, such as SSC CGL, then the level of questions are relatively easy. Okay, तो ये आसान होते हैं if you are coming from those, if you are having a good maths background, right? For the category 2 students, you need to preparation from basic, right? सो वन ऑफ द रीजन, अगर आपको जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी, उनका एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है बिकॉज दे फियर मैथ्स, उन्हें मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, राइट? तो अगर आप उन कैटेगरी में, इस कैटेगरी में लैंड अप करते हो, तो थोड़ा आपके लिए ये डिफिकल्ट बन जाता है यूनिट, एंड सर्टेनली यू नीड टू गिव मोर अटेंशन टू दिस कंपेयर टू द कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स, राइट? तो जो कैटेगरी 2 में लैंड करते हैं, उनके लिए ज़्यादा फोकस करने का यूनिट बन जाता है. यू नीड टू गिव मोर अटेंशन, मोर टाइम टू दिस पर्टिकुलर यूनिट, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, और ये बाइफरकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर बाइफरकेशन नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे किस यूनिट को कैसे हैंडल करना है, राइट? कि कैटेगरी 1 में लैंड करते हो, कैटेगरी 2 में लैंड करते हो. तो उसके बाद अब इस यूनिट से आपको, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है विच कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, राइट? तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे एवरेजेस, नंबर सीरीज. So these are all the important topics which you can expect in your examination, and इससे क्वेश्चन आते हैं, राइट? 2 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इन ईच सेट. आप किसी भी सेट में देखोगे यूजीसी नेट के, उसमें आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे. So that makes this one a very important and crucial unit. And as I said, for all those who are landing into category 2, they need to prepare and pay more attention to this particular unit. So because what they do is basically, generally is they leave these questions, right? But hota kya hai, as I said, you know, the difficulty level is not that high, but because you don't even attempt, you don't even try, you just skip this, पूरा ये टॉपिक आप छोड़ देते हो बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ मैथ्स, यू आर अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई यू लीव दिस क्वेश्चन. एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से यू आर गोइंग टू लूज आउट मार्क्स बिकॉज दीज आर वेरी मच स्कोरेबल. तो उस डर को ओवरकम करना है, तो यू नीड टू give more time, give more attention, and make sure that you're thorough with this concept, right? तो आज की वीडियो में we'll talk about number series in particular, and उससे पहले, like in my previous video where I have taken this unit before as well, unit 1, उसमें मैंने आपको पहले भी आपको रीजनिंग के बारे में पढ़ाया हुआ है, ब्लड रिलेशन के, राइट? सो इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट ब्लड रिलेशन, सो डू चेक आउट माय वीडियो ऑन टैलेंट ब्लेजर यूट्यूब चैनल एज वेल. सो उसको अगर आप देख लेना, आपका ब्लड रिलेशन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. मैंने वहाँ पे उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी लिए दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर यूजीसी नेट.
आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। आपको ओवर द टॉप नहीं करना, बिकॉज आप ओवर द टॉप करने लगोगे आप बेसिक भूल जाओगे, और बेसिक से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, वहाँ मिस आउट कर जाओगे। सो ओवर द टॉप नहीं जाना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में होता क्या है बेसिकली, आपको कुछ ऐसे सीरीज दे रखी है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3, ये कुछ रैंडम सीरीज दे रखी है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर पूछ लेंगे। इतना इजी नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 5 आप गेस ही कर दोगे 6 ही होगा, राइट। बट दिस इज नॉट दिस दिस इट वोंट बी दिस इजी, राइट। ये मैं बस आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या होता है, आपको नेक्स्ट नंबर बताना होता है या रॉन्ग नंबर बताना होता है। आपके पास ऐसे आती है नंबर सीरीज से क्वेश्चन, सो यू हैव टू गेस द राइट नेक्स्ट राइट नंबर एंड यू हैव टू पिक और आइडेंटिफाई विच वन इज द रॉन्ग नंबर, राइट। तो वो चीजें होती है, दो चीजें आपको ये करनी होती, ओके। अब फर्स्ट, बिकॉज आई एज्यूम मोस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, तो आपको थोड़े नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं जो स्टार्ट विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इसमें मेक श्योर जीरो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 to infinity, ठीक है, इन्फिनिटी 1 to infinity, दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। तो 1 to infinity सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। आई होप सबको याद हो जाए, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 to infinity मतलब सारे पॉजिटिव, एंड जीरो इंक्लूड नहीं होता है। जीरो किस में इंक्लूड होता है? वो होता है होल नंबर्स में, जीरो इंक्लूड होता है होल नंबर्स में। तो अगर हम बात करते हैं, आपको एक चीज याद करनी है, आप उससे नेचुरल नंबर्स भी याद कर लोगे। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज होल नंबर्स होते हैं जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी होते हैं होल नंबर्स। और अगर हम सिर्फ जीरो यहां से हटा दें, जीरो को अगर हम रिमूव कर दें इस चीज से, तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स है, ओके। तो ये चीज है हमारी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में। अगर आपको समझना है सिंपल नंबर सीरीज की, अगर मैंने बोला आपको डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन नंबर सीरीज एंड blood relation पे आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, सो यू डेफिनेटली यू हैव टू चेक दैट वन एज वेल। अगर इसमें हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, जैसे मैंने बोला those numbers who are starting from 1 to infinity, positive integers are natural numbers। but इसको याद करना उससे अच्छा कि यू नो इजियर ट्रिक इज टू रिमेंबर होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी, एंड उसमें अगर आप जीरो हटा दो, राइट, सो यू विल गेट नेचुरल नंबर्स, ओके। तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, दो चीजें अलग अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी, ओके। नाउ what are integers, right? So integers क्या होते हैं? Integers are defined as set of all whole numbers with a negative set of natural numbers, okay? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके होल नंबर्स है। होल नंबर्स आपको याद हो गए होंगे, जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, ये तो अब याद हो गया। अब इंटीजर्स में एक और एडिशन हो जाता है कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो -1 टू इन्फिनिटी भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स आर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ होल नंबर्स विद अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है वो हमारे जो नेगेटिव हो जाते हैं, उसको अगर वो इंक्लूड होते हैं टोटालिटी में, तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स में ज्यादा चीजें इंक्लूड होती है। इंटीजर्स, अगर इफ आई हैव टू सम इट अप, इंटीजर्स इज इक्वल टू नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स, ठीक है। तो अगर इसको सम करना है तो सीधी बात है, ये हमारे क्या हो गया? होल नंबर्स। ये हो गया हमारे नेचुरल नेगेटिव नंबर्स। तो इनको हम सबको टोटलिटी में हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर। तो इंटीजर्स के अंडर अगर लाइक इफ यू हैव टू स्पेसिफिकली डिफाइन कि अगर 1 क्या है, तो वो नेचुरल नंबर है, बट वो इंटीजर भी है, ठीक है, वो दोनों चीज है, ऑलराइट। तो ये चीज है। इंटीजर में और भी एडिशन हो जाते हैं, जैसे -1 -2 -3, राइट। दैट इज हाउ द नंबरिंग गोज, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स की रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q। अगर आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो तो उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/1, तो राइट यू कैन राइट 7 एज 7/1, उसका मतलब एक ही है, राइट। 7 डिवाइडेड बाई 1 इज 7 ओनली, राइट। 10 डिवाइडेड बाई 2, अगर आपको 5 लिखना है, 5 को आप ये ऐसे भी तो लिख सकते हो, 10 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। इसको अगर हम किसी भी नंबर को हम एक p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ वन नंबर ओवर दी अदर नंबर, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो r से इसको अगर यहाँ तक ही अगर हम पढ़े तो ये रेशियो बनाता है रैशनल नंबर से, ओके।
तो इसका अगर हम बात करें तो रेशियो आता है रैशनल में, तो इससे आपको याद रहेगा कि रेशियो की फॉर्म में अगर हम किसी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 7/1, 10/2, 1/1। अब देर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, अब प्राइम नंबर क्या है प्राइम नंबर, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी के इसको ना थोड़ा पढ़ना पड़ता है हमें अलग से कि प्राइम नंबर क्या है। अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, दैट इज वन, वन तो सभी का फैक्टर है, एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इस डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करना, दैट इज वाई आई एम हाईलाइटिंग इट एज वेल, कि अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, राइट, तो हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं, नंबर जैसे 5, 5 एक प्राइम नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर है, आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल, प्राइम नंबर है, तो मतलब 5 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, 5 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड 5 इटसेल्फ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स के, जैसे 3 भी है, राइट, तो और उसके बाद हमारा 7 है, 17 है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे नंबर्स होते हैं, 11, 13, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इवन 2 इज आर प्राइम नंबर, ऑलराइट, तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, जिनके सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारे नंबर्स की कैटेगराइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, बट बिकॉज एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में ना कभी कभार प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाता है, एक सीरीज बनती है दैट इज totally in prime numbers, but if you're not aware about the prime numbers even, so then you cannot figure how to solve that particular question, तो प्राइम नंबर समझना जरूरी है, और ये बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब इन्हीं का ऑपोजिट, राइट, इन्हीं के ऑपोजिट जो प्राइम नंबर के ऑपोजिट होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल 4 की, 4 किस किस से डिविजिबल है, 2 से है, 1 से है, 4 खुद से भी है, तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, ठीक है, जो उसको डिवाइड कर सकता है। सेम गोज फॉर 6, इवन 6 को 3, 2, 6, 1 काफी नंबरों से आप डिवाइड कर सकते हो, तो वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर। अब आई होप डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर, एंड दिस इज वाई फॉर ऑल दोज हु आर नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, hasn't studied maths for a while, उन सबको एक रिविजन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन जम्प टू द क्वेश्चंस and start practicing the questions, but no, I want everyone to learn the basic, and then we'll start with solving the questions, right? So I hope everyone is clear with this. So we'll start with the practice question. The question number 1, which number would replace the question mark in the series? Okay, so ये हमें एक सीरीज दे रखी है, उसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मिसिंग नंबर जो है पूछा है हमसे, तो हम एक सेकेंड इसको नोट कर लेते हैं। 2, 7, just a second, 2, 7, 14, 23 and last one is 47। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज फाइंडिंग द डिफरेंस, इसमें डिफरेंस है 5 का, इसमें डिफरेंस है 7 का, इसमें डिफरेंस है 9 का, तो अगर हम इनमें देखें तो ये जो डिफरेंस है, जस्ट अ सेकेंड, राइट, तो अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो ये जो डिफरेंस है इनमें सब में +2 हो रहा है, ओके, तो ये +2 हो रहा है। अब इसके बाद अगर इसमें हम +2 करते हैं तो कितना आएगा, 11, राइट, सो द नेक्स्ट आंसर शुड बी 34, राइट। यहाँ पे अगर हम +11 करेंगे और इसमें अगर हम +13 कर रहे हैं तो आंसर भी सही आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, 34। सो इसमें अगर जो ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 34 है, तो आंसर इज बी, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, 34 होगा, ओके। So this is one of the ways how you can solve your number series question. Firstly, what you have to do, just a second, थोड़ा आगे बढ़ गए, राइट, तो अगर हमने देखा, पहले हमने डिफरेंसेस देखे इनके बीच में, अगर उनमें डिफरेंसेस में देखा हमें कि डिफरेंसेस में प्लस करके इफ वी आर गेटिंग अ पैटर्न, अगर हमें एक पैटर्न दिख रहा है, सो वी नीड टू फॉलो दैट एंड देन वी कैन डेफिनेटली रीच अ आंसर, राइट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर इफ यू जस्ट नो द बेसिक्स, आपके लिए इजी क्वेश्चन था, समझने में इजियर था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अर्लियर क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था,
just a second, right? So the second question talks about find the wrong number in the series. We need to find the wrong number in the series. Okay, so let me just note it down and वहाँ पे हम explain करते हैं इसको. 7, 28, 63, 124, 63, 124, 215, and there is one more, 342. Okay. So if we talk about the differences, इसमें 21 आ रहा है, and if we talk about the differences here, तो यहाँ पे difference कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, right? 35 समथिंग. तो इसमें कुछ पैटर्न तो बन नहीं रहा. इसमें भी चेक कर लेते हैं. 61 कुछ आ रहा है, तो ये कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, राइट? तो डिफरेंसेस वाला यहाँ पे वो काम नहीं करेगा. सो अगर इसमें यहाँ पे क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, राइट? दिस फॉर्म्स बाय 2 क्यूब माइनस 1. लेट्स सी अगर ये क्यूब का रूट फॉलो करता है. दिस फॉर्म्स बाय 3 क्यूब प्लस 1, राइट? This follows by 4 cube minus 1. This following 5 cube minus 1. This is following 6 cube minus 1. 7 cube minus 1. So this is your wrong number, right? अगर हम देखें बाकी सब में एक पैटर्न फॉलो अप हो रहा है कि सबके क्यूब में से, बिकॉज इफ यू आर अवेयर अबाउट द क्यूबिक, राइट? 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343. इफ यू आर अवेयर अबाउट द क्यूबिक नंबर देन it is possible for you to solve this question because उसमें और कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, right? So in this the wrong number is 28. So option B will be the right answer here. Okay, now let's move on to the next question. Find the missing term. यहाँ पे हमें टर्म ढूंढनी है जो मिसिंग है, राइट? तो हमें एक नेक्स्ट टर्म ढूंढनी है, मिसिंग टर्म. 4, 9, 30, 22, 35. Just let me note it down. 4, 9, 13, 22, 35, and we need to find this one, right? So इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 4 है, बिकॉज आई एम चेकिंग आउट कि अगर कुछ डिफरेंस से बन रहा है क्या. दिस कम्स आउट टू बी 9 एंड ये 13. डिफरेंस तो नहीं बन रहा, बट देर इज समथिंग दैट इज एक्चुअली मेकिंग सेंस हेयर. जस्ट लेट मी write it down, then let's see whether that is right or wrong. Actually 4 plus 9 is giving this number. 4 plus 9 is giving this number. 9 plus 13 is giving this number. 22 plus 13 is giving this number. 35 plus 22 should give the next number there. Oh, just a second. Okay, so this comes out to be 57 from what I think as of now, because इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बन रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो ये नंबर बन रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो ये नंबर बन रहा है. सो दैट इज द पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड इन दिस क्वेश्चन, राइट? सो इफ यू गो द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज 57, राइट? तो इसमें क्या है, ये दोनों का सम इज गिविंग दिस, इन दोनों का सम इज गिविंग दिस, इन दोनों का सम इज गिविंग दिस, फिर इन दोनों का सम विल गिव दिस, राइट? तो इसको इस पैटर्न से बनाया गया है, इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ फाइंड द मिसिंग टर्म. दिस टर्म, ये हमारा एक मिसिंग टर्म का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लग रहा है. जस्ट लेट मी गिव मी अ सेकेंड, मैं उसको नोट डाउन करता हूँ एंड देन वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड देखते हैं क्या किस पैटर्न के साथ इसको सॉल्व करा जा सकता है, इफ दैट इज ईजियर और नॉट, राइट? कभी कभार होता है कि कुछ पैटर्न समझ नहीं आता. 11, 13, 17. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 23, 29, 31, 37, 41. ओके, तो इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? 2, 4, 2, 4, 6, 2, 6, 4. कोई पैटर्न तो डिराइव नहीं हो रहा, बिकॉज अगर ये पैटर्न 2, 4, 2, 4 होता तो देन वी कुड हैव रीच्ड आवर आंसर, बट इसमें कुछ पैटर्न डिराइव नहीं हो रहा एंड इसमें कुछ क्यूब स्क्वायर भी नहीं लगेगा, राइट? 3 का स्क्वायर प्लस 2, नहीं, ये दिस इज नॉट
द राइट वे, इसका कुछ सीधा डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है. व्हाट एल्स कुड बी द यू नो द जॉइनिंग पॉइंट्स, इसको कैसे वो ज्वाइन कर रहा है. ओके, सो 11 इज व्हाट, आर प्राइम नंबर. 13 is also our prime number, and 17 is also our prime number. So maybe they are following the prime number pattern. So let me check. 11 is also prime number, 13 is also prime number, 17 is also prime number, 19 is also prime number, 23 is as well, 29 as well, 31, 37, 41. So what is the next prime number that actually comes after 41 would be the right answer. So this comes out to be 41 and then 43, right? So 43 आपका next prime number होता है. So 43 हमारा right answer होगा. Okay, इसमें हमें follow करना पड़ा prime number वाला series. So that is why I was taking about those questions, right? कि prime number भी important है, तभी प्राइम नंबर पता होना चाहिए. अगर आपको पता ही नहीं प्राइम नंबर तो आप ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाते और आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, राइट? तो इसीलिए यू नीड टू नो प्राइम नंबर्स, यू नीड टू नो स्क्वायर्स of first 25 numbers and cube till फर्स्ट 10 भी अगर आप कर लेते हो दैट इज इजी. 10 तो बहुत इजी है, अगर 15 तक कर लो, बिकॉज थोड़ा 15 यू नीड टू प्रिपरेशन करनी भी जरूरी है, तो आप 15 तक कर लो, राइट? 10 तो बहुत इजी है, सभी कर लेते हैं. 15 तक कर लो, थोड़ा एडेड एडवांटेज रखो. मे भी कुछ ट्रिकियर हो जाए तो वहाँ पे आपको हेल्प हो जाए और आप वहाँ पे मिस आउट ना करो. बिकॉज यू नो वाइल कैलकुलेटिंग रूट्स, अगर आप करने लगे कैलकुलेट, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करने लगे ना, तो दैट विल टेक यू लॉट ऑफ टाइम. दिस आई नो ऑलरेडी, बट इन रियल टाइम दैट विल टेक योर टाइम. और एग्जामिनेशन में देयर इज एडेड प्रेशर, तो वहाँ पे यू विल क्रॉस चेक ईच एंड एवरी कैलकुलेशन. इवन इफ यू आर राइट, यू विल क्रॉस चेक वेदर यू नो दिस इज राइट और रॉन्ग. सो वहाँ पे हेजिटेशन बहुत हो जाती है. उस चीज़ को, उस माइंडसेट को कॉन्कर करने के लिए मेक श्योर दैट यू रिमेंबर एवरी नंबर, राइट? अच्छे से याद करना. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म अगेन. सो लेट मी नोट इट डाउन. 15, 31, 63 and 127, right? 127, 255 and the last one that we need to find out. Okay, so let me check if there is any additional thing that we can do. Now this is though this is like coming into 2, this is 64 and 128 and this is like 128, right? 835, yes, 128. Okay, 16 and this is 32 only. Okay, 127, 64 and this is 128. Yes, and the next one should be 256. Okay, because we are definitely getting through our additional numbers only, so this we crack through this one. ज़्यादा मुश्किल नहीं है. 16 के टेबल से ही चल रहा है. 16, 32, 64, like as in you know these are multiplied by 2 and इसमें अगर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें 128 into 2 that gives us 256. तो 255 and 256 we need to add it down. 11, 10, 11, 511 would be the next missing term, right? तो ऐसे देखो सिंपल भी हो जाता है काफ़ी बार, यू नो, जस्ट इन सेकेंड्स, इन टर्म्स ऑफ मिनट, ये बहुत ईजिली हो गया जैसे इस केस में था, राइट? तो ये आ गया हमारा 511. ओके, तो इसमें आई होप किसी को डाउट ना हो, किसी को डिफिकल्टी ना हो. सो दिस कम्स आउट टू बी 511. ठीक है, नाउ फाइंड द मिसिंग टर्म. हमें फिर से मिसिंग टर्म पूछी गई है इस क्वेश्चन में भी. तो लेट मी रोट इट डाउन फर्स्ट एंड देन विल मूव ऑन टू कि कैसे इसको सॉल्व करना है. पर आई होप दिस क्वेश्चन कम्स आउट ईजी, बिकॉज ये मैं खुद सॉल्व कर रहा था एंड उसमें मुझे भी ये लगा कि अच्छा ये दिस इज द यू नो the pattern that is being followed. That's like every number, the difference is being multiplied by 2, right? So this is 2, 2, 2, 2 and the next one was, last one was 256 and the next one would have been, you know, if we want to check it out, we can add on 512 as well. So that would have given us 1023. तो ऐसे ऐसे हम numbers और भी बढ़ा सकते थे. ठीक है, तो this was another thing that just you know helped us to solve this question. तो कभी कभार आप एड ऑन करो, बेसिक डिफरेंस देखो, मल्टीप्लिकेशन देखो, मे बी इट वर्क्स फॉर यू, राइट? तो फर्स्ट स्टेप हमेशा इसी चीज़ पे होना चाहिए कि आप ऐसे पैटर्न को थ्रू ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो.
मे बी दैट वर्क्स. अगर नहीं करता तो देन यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चंस एज वेल, राइट, कि अनदर ट्रिक्स. बट सबसे पहले एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ही करके देखो. जस्ट अ सेकेंड. हमारा 6th क्वेश्चन क्या है? 9 12 11, 9 12 11 14, 9 10 9 12 11 14 30, एंड देन देर इज 15. तो हमें एक बीच का मिसिंग टर्म पूछा जा रहा है. तो इसमें क्या है, देखो पहले क्या हो रहा है, +3. ओके, दिस इज कमिंग आउट टू बी -1, एंड देन देर इज +3, देन देर इज -1. So according to us, like this pattern is being followed in here, right? +3 -1 +3 -1. So what should be the next term? 13 plus 3, that comes out to be 16. And if we -1, if we deduct 1 from 16, we will get 15, right? So very simple. Very simple. And these are all your previous year questions. So what you can expect from these examination, this is the level. ये level है, right? This is the level that you can expect and encounter. I'm not saying definitely this question will come up in your examination. There could be a chance that, you know, a level up question could also be there, but these are all your previous year questions, right? तो अगर पहले ऐसे पूछे जा सके तो आगे भी पूछे जा सकते हैं. बट अगर थोड़ा ऊपर नीचे डिफरेंस में आएगा तो then you should always be open to solving these questions. I know if you go by the trick of firstly deducting कि क्या है इनके बीचेस में, इनमें differences क्या है, then you can definitely find out the link. अगर वो लिंक वहां से नहीं मिल रहा, अगर आपको differences से लिंक नहीं मिल रहा, so then you need to look up कि वो natural numbers, prime numbers, composite numbers में क्या है, कुछ cubic square roots, और वैसा कोई रास्ता तो नहीं अपनाना पड़ेगा. So that is how you can figure it out, right? तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका अगर हम आंसर देखें, जस्ट अ सेकेंड, राइट. तो इसका अगर हम आंसर देखें तो आंसर वुड बी 16, बिकॉज इसमें +3 -1 वाला पैटर्न फॉलो अप हो रहा था. तो यहाँ पे अगर +3 करेंगे तो 16, यहाँ से उससे -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा. सो 16 वुड बी योर राइट आंसर. नाउ वी नीड टू फाइंड द रॉन्ग टर्म. यहाँ पे हमें रॉन्ग टर्म पूछी गई है. ओके, तो इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ फटाफट पहले, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. 125 126 124, जस्ट अ सेकेंड. 125 126 124, 127 123 129, 127 123 129. ये हमारा एक दे रखा है, इसमें हमें रॉन्ग टर्म पूछी गई. मिसिंग टर्म और रॉन्ग टर्म में ये चीज याद रखना. मिसिंग टर्म में यू नीड टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म और द क्या द नेक्स्ट टर्म और द डिफरेंस टर्म, और रॉन्ग टर्म में यू नीड टू फाइंड विच वन इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो चलो फिर से वो पैटर्न डिनोट करने का तरीका देखते हैं. +1 -2, ओके, +3 -4, and this +5 if we go by this pattern, then -6, राइट. पर देखो अगर आप इस चीज में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस पहले एक हो रहा है, फिर देन देर इज -2, मतलब जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है एक प्लस होगा एक माइनस होगा. तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूट फॉर वाला, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, तो पहले अगर 1 आ गया तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा. तो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ 2 आता तो यहाँ पे 3 आता, मतलब नेक्स्ट प्रीसीडिंग टर्म आएगी, राइट. तो नेक्स्ट जो टर्म है, तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा. तो अगर इसके पैटर्न के थ्रू अगर हम फॉलो करें तो 125 + 126, -2 इज 124, +3 इज 127, -4 इज 124, एंड देन +5 इज नॉट 129, दैट इज 128. वो 128 होता है, राइट. तो हमारा रॉन्ग टर्म, जस्ट अ सेकेंड, हमारा रॉन्ग टर्म क्या हुआ इसमें, हमारा रॉन्ग टर्म हो गया था 129, और राइट क्या था 128. तो एक बार ही हम देख लेते हैं ऊपर. सो ऑप्शन ई वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज हमें रॉन्ग टर्म को यहाँ पे मार्क करना है. तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म हमारा होगा 129. And the next question is also related to wrong term. So because I have taken a mixed bag of wrong term and missing term. Wrong term और missing term का एक mixed bag है. तो इसी के अकॉर्डिंग आपको all these are
PYQs, तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है कि आपको कितना कैसे प्रेप करना है और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Just a second. So 1, 2, I think 1, 2 was there. 1, 2, 6, 15, 6, 15, 31, and there is 56 and 91. 56 and 91. So let's start with our basic method. इसको अगर देखें तो ये वहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 16 हो रहा है, यहाँ पे 25 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 5, तो 35. ओके, तो इसमें अगर हम देखें कुछ एडिशन से कुछ बन नहीं रहा है. नंबर्स में भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बाय 4 इंटू 2 प्लस 2.5, तो मल्टीप्लिकेशन से भी कुछ नहीं हो रहा. राइट, तो हमारे जो फर्स्ट 2 रूट्स थे, 2 रूट जैसे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला एंड मल्टीप्लिकेशन, सो नन ऑफ दोज आर वर्किंग. मतलब उन तीनों से कुछ आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. अब और क्या कुछ पैटर्न डिराइव हो रहा है यहाँ पे. राइट, सो इफ वी लुक एट द this the differences thoroughly, I think this could be like we can say this is 1 का square. 1 का square is 1 only. This is 2 का square, that is 4. This is 3 का square, that is 9. This is 4 का square, that is 16. This is 5 का square, this is 25. This is 6 square minus 1. So instead of 91, if this would have been 92, then the series would have been right. राइट, बिकॉज अगर यहाँ पे 36 ऐड हो रहा था 92 और वो 6 का स्क्वायर बनता, तो देन दैट वुड हैव बीन द राइट आंसर. राइट, सो इससे हमें हमारा रॉन्ग टर्म मिल गया, दैट इज 91. सो ऑप्शन आपका डी है. तो हमारा रॉन्ग टर्म कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन डी है. कैसे पता चला, हमने पहले विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द डिफरेंसेस. जैसे मैंने कहा सबसे बेसिक स्टेप है, पहले आपको डिफरेंसेस चेक करने. डिफरेंसेस में अगर आपको कुछ मिले, you know, if you look for the pattern, then go with that pattern or that flow. बट आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, then we decided to like check off कि कोई प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर भी नहीं था because this 4 is a composite number. उसके बाद हमने देखा कि क्या है यहाँ पे, वी जस्ट लुक थ्रू इट अगेन एंड अगेन. अगर आपको नंबर्स स्क्वायर्स अगर अच्छे से याद है ना, तो आप वो पैटर्न दिमाग में चलने लगता. राइट, अगर आपको नंबर्स के स्क्वायर्स याद है, नंबर्स के क्यूब अच्छे से याद है, तो वो चीज़, वो पैटर्न आपके दिमाग में चलने लगेगी. तो आप इजीली फिर आप बता पाओगे, अच्छा दिस वुड बी द राइट ट्रिक, राइट वे टू सॉल्व दिस आंसर. सो उससे हमारे कुछ की नोट्स मिलते हैं. राइट, सो हमारे जो की नोट्स अगर मैं बात करूं, सो फर्स्ट थिंग दैट व्हाट यू हैव टू डू इज टू लर्न स्क्वायर्स टिल फर्स्ट 25 to 30. राइट, 25 भी नहीं, मैं अब 25 to 30 करूँ, ज़्यादा करो. 25 बहुत बेसिक है, 25 तक याद करना बहुत सिंपल है. इवन स्कूल किड्स कैन डू दैट वेरी इजीली. यू नीड टू डू टिल 30. राइट, बिकॉज यू नीड टू प्रेप हायर. आपको 30 तक कम से कम याद होने चाहिए. उससे ज़्यादा याद है, दैट इज़ वेल एंड गुड. 25 तो होने ही चाहिए फर्स्ट. 30 should be your target, and if you can do more than that, that is on you, and that will be definitely helpful. Second, learn cubes. तो क्यूबिक नंबर आपको याद करने हैं टिल फर्स्ट 15. अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने बोला वहां पे आपको डिफरेंसेस, अगर आप पैटर्न देखते रहोगे ना बार बार, तो यू कैन रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये क्यूब्स यहाँ पे फॉर्म अप हो रहे हैं, यहाँ पे क्यूब्स के डिफरेंसेस फॉलो अप करा जा रहा है. तो अगर आपको क्यूब्स याद है टिल फर्स्ट 15 नंबर्स, देन यू कैन डेफिनेटली गेट अ यू नो डेफिनेटली गेट कैन अटेम्प्ट सच क्वेश्चन जहाँ पे क्यूब्स का ट्रिक यूज करा गया है. ठीक है, तो हमें फर्स्ट 15 नंबर्स तक तो आपको याद करने ही करने हैं. आपको सारे के सारे क्यूब्स याद होने ही चाहिए. ठीक है, एंड दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ जॉब. अगर आप लेट सपोज इफ यू आर हैविंग दैट ट्रबल, आपको याद करने में दिक्कत होती है, क्यूब्स इतने सारे इतने बढ़ते रहते हैं. सो व्हाट एन ईजी ट्रिक दैट यू कैन डू इज प्रिपेयर अ चार्ट और अ पेपर, राइट डाउन स्क्वायर्स ऑन वन साइड. आप स्क्वायर्स लिख सकते हो एक तरफ पे, एंड दूसरी तरफ पे आप क्या लिख सकते हो, वहां पे आप लिख सकते हो क्यूब्स ऑन द बैक साइड. ठीक है, तो उसको यू कैन हैव इट ऑन योर डेस्क. आप उसको रोटेट करके अपनी डेस्क पे देख सकते हो. आज के दिन आपने स्क्वायर्स कर लिए पूरे, फिर उसके बाद क्यूब्स को एक दिन पढ़ लिया. सो आप डेस्क पे रखोगे अपने, जहाँ पे स्टडी टेबल है स्टडी डेस्क पे, तो आपको हर दिन याद होता रहेगा, पैटर्न दिखता रहेगा. सो इफ यू आर वॉचिंग देम, इफ यू आर गोइंग थ्रू देम ईच एंड एवरी डे, आई एम वेरी मच श्योर दैट आप लाइफ टाइम तक याद कर लोगे. आप कभी नहीं भूलोगे कि स्क्वायर और क्यूब्स कितने होते हैं, किस नंबर के, पर्टिकुलर नंबर के. ओके,
तो ये चीज़ है, मेक श्योर एक पेज पे लिख लो, एंड देन अगर पेस्ट करना है तो फिर स्क्वायर क्यूब एक पीछे मत लिखना, फिर अलग अलग पेजेस पे लिखना, बिकॉज आई नो सम पीपल आर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्चुअली पेस्टेड ऑन देयर वॉल, तो वहाँ पे आपको आगे पीछे मत लिखना है बिकॉज एक साइड नहीं दिखेगी, तो स्क्वायर एक तरफ लिखना है, क्यूब्स अलग पेज पे लिखना है, एंड देन यू कैन पेस्ट इट ऑन योर वॉल। ओके, नाउ जब ये चीज़ें याद हो जाए तो सॉल्व एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्व एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, व्हाई? बिकॉज ये जो पैटर्न डेराइविंग है, लेट सपोज आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, बट अगर नेक्स्ट आपको कोई क्वेश्चन मिल गया जिसमें ये सारे पैटर्न्स नहीं लग रहे, उसमें कोई और पैटर्न लग रहा हो, देयर कुड बी अ चांस, ऐसा नहीं है जो मैंने पैटर्न बताया उसके आउटसाइड भी देयर कुड बी अनदर पैटर्न, राइट? कभी कभार क्या होता है, स्क्वायर प्लस वन यूज हो रहा होता है किसी का, राइट? जैसे 2² + 1, 4² + 1, किसी में प्लस होता है, नेक्स्ट वाले में माइनस हो रहा होता है, तो वहां पे पैटर्न डिराइव करना और पैटर्न्स को पता करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज सॉल्व एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो दैट इज योर, दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। तभी मैंने बोला जो बच्चे दोज आर वीक इन मैथ्स, दे नीड टू डिवोट अ सिग्निफिकेंट मोर टाइम कंपेयर टू अदर यूनिट्स ऑन दिस पर्टिकुलर वन, राइट? तो उसकी वजह से अगर आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे लॉट ऑफ क्वेश्चन, एक चीज उससे क्या होगी, फर्स्ट योर कॉन्फिडेंस विल शूट अप, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। सेकेंड, हायर चांसेस ऑफ गेटिंग द राइट ऑप्शन और गेटिंग द राइट आंसर, राइट? एंड द लास्ट वन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, द C1, व्हाट द बेनिफिट कुड बी, टाइम सेविंग, आपका टाइम बहुत सेव होगा। आपको जिस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है बिकॉज आपको अवेयर नहीं हो कॉन्सेप्ट के बारे में, तब अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, आपने प्रैक्टिस बहुत करी है, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, फटाफट सॉल्व कर दोगे एंड राइट आंसर सॉल्व करोगे। सो नंबर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी टॉपिक है, मिस आउट मत करना, अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस बहुत करनी है, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। प्रैक्टिस करने से एक और चीज उसके रिलेटेड, राइट? तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये बहुत रामबाण बोल सकते हो उसको आप, रामबाण है, दैट यू कैन क्लेम योर यूजीसी नेट एसेंशियल ई बुक ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे यूनिट 5 है, आपको यूनिट 5 के ऊपर 35 पेजेस की पूरी नॉलेज बुक मिल रही है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो। और क्या इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं देनी, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है इस पर्टिकुलर नंबर पे 9873907600, आपको व्हाट्सएप करना है, देन क्लेम योर फ्री बुक, राइट? आप क्लेम करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, हर कोई क्लेम कर सकता है, फ्री है, कुछ आपको यू डोंट हैव टू पे द मनी इवन। उससे क्या हो रहा है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे थे, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसको आप सॉल्व करो, सोल्यूशंस भी मिलेंगे, तो पूरी ई बुक मिल जाएगी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे। सो व्हाट इज द हार्म, इसमें कोई हार्म नहीं, आप करो, राइट? तो आप इस पे व्हाट्सएप करो एंड देन डेफिनेटली यू कैन कम क्लोजर टू योर प्रिपरेशन, आप अपनी प्रिपरेशन से और नज़दीक जा सकते हो, राइट? सो थैंक यू ऑल, एंड इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन डाउनलोड द टैलेंट ब्लेजर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। इस पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे PYQ मिलेंगे, इस ऐप को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके बेसिस पे यू आर डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन इज फ्रॉम Feb 18 टू मार्च, राइट? मार्च में है आपके जो एग्जामिनेशन जाने आने वाला है यूजीसी नेट का, अब डेट बहुत पास आ गई है, तो आप हर हफ्ते आपको कम से कम एक प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना चाहिए, फुल एंड फ्लेज्ड यूनिट 1 का, पेपर 1 का, सॉरी, आपको पूरे का पूरा एक अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा टू नो वेयर यू आर स्कोरिंग वेल एंड वेयर यू आंट। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे आगे प्रिपरेशन में, अपने ड्रॉबैक्स, अपने जहाँ जहाँ शॉर्ट कमिंग्स है उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? तो वो सब इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐप डाउनलोड करनी है टैलेंट ब्लेजर से। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक द वीडियो, अगर पसंद आई वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना टू द चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो with your friends as well, so that everyone can get benefited। and if you are competing with a healthy competition, then that makes you stand out, that if you are coming out the top, अगर आप बेस्ट आ रहे हो तो उससे आपको एक स्टैंड आउट फीलिंग आती है दैट आई एम बीटिंग द बेस्ट, राइट? एक कॉम्पिटिशन लेवल अच्छा होना चाहिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। मेक श्योर आप इस ऐप को डाउनलोड करो, बहुत बेनिफिट्स है। एंड जो मैंने आपको बोला क्लेम करना अपने एसेंशियल ई बुक, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जस्ट व्हाट्सएप on that particular number and you can claim your essential ebook, and that offer is valid for a very short duration। तो जल्दी जल्दी ये वीडियो देखना, जैसे ही अगर आप वीडियो देखो towards the end, definitely make sure that you do claim your ebook, right? So thank you all for joining।